کچھ اس طرح سے رب نے اتارے ہیں محمد، کچھ اس طرح سے رب نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، کچھ اس طرح سے رب نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ در بطول پہ آکے جبرائیل نے اکثر سوچا، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد۔ اب آپ کے سامنے جناب مولانا علی ساجد، نام میرا سلامی نام میرا بھول گیا، علی ساجد الحسینی تلہلہ صاحب اور ناصر عباس تلہلہ صاحب دے شاگرد ساجد تلہلہ صاحب تواڈے سامنے ذکر فضائل مصحف بیان فرمائے سے۔ تلہلہ صاحب دی آمد دے باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات۔ بارحضرت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کدی تمام سامعین کدی تھوڑا جہا درود پڑھتے پڑھتے ذرا اگے آ جاؤ نا، تاکہ جگہ جڑی ہو رو جب جڑے مگروں آن والے نے تاکہ انہوں نے جگہ پیچھے مل سکے۔ درود پڑھ دے آؤ جی ایک مرتبہ، مہربانی۔ اللہم صلی علی، اور مجلس کا ویسے ماحول، ہاں جی مجلس کا ماحول بعد چ ڈسٹرب نہ ہوئے، مہربانی فرماؤ جڑا آ سکتا بھی مہربانی فرمائے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، مہربانی۔ پاک سیدہ دی عظمت ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، حمد و ثنا ہے اس ذات احدیت دے واسطے کہ جڑی ذات حمد و ثنا دے لائق ہے۔ درود و سلام ہے صرف محمد و آل محمد دے واسطے کہ جڑیاں ہستیاں درود و سلام دے لائق نے۔ لکھاں رحمتاں اور برکتاں صحابہ رضوان الاجمعین دے واسطے کہ جڑے رحمتاں اور برکتاں دے لائق نے، تے انگنت لعنت ہے انہاں بد کردار لوگاں واسطے جڑے لعنت دے مستحق ہیں۔ انتہائی زیرک مجمع میرے سامنے تشریف فرما۔ عزیزان محترم، خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جڑی آیت میں جناب دے سب نے قرآن حکیم دے وچوں پڑھن دی سعادت حاصل کی تھی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو ایک نصیحت کی تھی، اور ہر روز باپ اپنے بیٹیاں نو نصیحت کر دے ہیں۔ یقیناً جنہاں نو اپنے بیٹیاں دی اصلاح دے نال کوئی نہ کوئی سروکار ہے، وہ باپ بیٹیاں نو نصیحت کر دے ہیں، مختلف نصیحتاں کر دے ہیں۔ یہ ایک باپ ہے جنہیں اپنے بیٹے نو نصیحت کی تھی، جنہوں میں قرآن دے وچوں دہرایا ہے۔ عزیزو، یہ دا مطلب ہے کہ نصیحت جڑی میں جناب دے سامنے قرآن چ پڑھن لگا ہاں، جڑی میں آیت جناب دے سامنے پڑھی ہے، اگر قبلہ یہ دا میں ترجمہ کراں تو ہو سکتا ہے کہ بندے انہوں لائٹ لین، بندے سمجھن کہ معمولی جی گل ہے، یہ کوئی ایڈی گل نہیں، لیکن میں اس گل نوں ایڈی ہلکی نہیں محسوس کردا، اس واسطے کہ جس نبی دے ذریعے اللہ نے انہوں قرآن دی زینت بنایا، وہ نبیان دا سلطان ہے۔ واہ بھائی واہ، ہاتھ سلامت رہے جی جڑے پہنچ گئے ہیں، بہت شکریہ بھی میرے عزیزو۔ یہ مطلب ہے چھوٹیاں دی گل بڑیاں تک پہنچا کے اللہ نے ان قرآن دی زینت بنایا۔ آخر کسے اہمیت دی حامل تے یہ گل ہے نا،
اور خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت لقمان نے کیتا کی فرماندے نے یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میرے عزیزوں میں پہلے عرض کیتا سی ہو سکتا کوئی بندے انہوں لائٹ لین ہلکا لین لیکن میں قبلہ انہوں ہلکا نہیں محسوس کرتا کیونکہ جس نبی دے ذریعے اللہ نے قرآن دی زینت بنایا ہے وہ نبیوں دا سلطان ہے اور جس بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں او بیٹا چھوٹا دے تے جنہوں قرآن دے وچ محمد دا بیٹا آکھیا وڈا دے. کیا بات ہے بھائی ابنا اناب ابناکم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ محمد اپنے بیٹے کو لاتا ہے. یہ دا مطلب ہے اونا دی گل نو قرآن دے وچ قبلہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب انہوں نے وہ گل سنا جڑی زکریا نے جڑی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے دے نال گل کی تھی کہ میرا بیٹا کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. میرے عزیزو یہ دا مطلب ہے ان شرک علی ظلم عظیم کیونکہ شرک عظیم ظلم ہے. میرے عزیزو جی اگر شرک سب تو بڑا ظلم ہے تو مشرک سب تو بڑا ظالم ہے. کیا بات ہے وہ ظالم ہے قبلہ سب تو بڑا ایک قبلہ قرآن دی زینت بنایا ہے اور میں نہیں پتا کہ لوگ توحید نو کس انداز نال بیان کرتے ہیں. میں سمجھنا کہ جڑی آئمہ دی دیتی ہوئی توحید ہے میں آج وہ جناب دے سامنے بیان کرا آئمہ دی معصومین دی دیتی ہوئی توحید میں نہیں پتا لوگ توحید نو کس انداز نال مانتے ہیں لیکن میرے عزیزو آئمہ دی دیتی ہوئی توحید کی ہے وہ میں بیان کرنا چاہنا ہوں. میرے عزیزو کسے نو ککھ نہیں پتا کہ توحید کی ہے جی کسے نو ککھ نہیں پتا کہ توحید کی ہے. میرے عزیزو اس واسطے موضوع میں شروع کیتا ہے کہ جنہیں بھی خود کچھ تماکہ آور تیار کیتے جاندے رہنا انہوں نے مگروں یہ تلقین ہوندی ہے کہ تم مسلماناں چ تماکہ نہیں پیا کردا تم مشرکاں چ تماکہ پیا کردا. جے اگر تینوں مشرک داتا صاحبوں لب جان اوتھے تماکہ کر چڑی جے اگر عبداللہ شاہ غازی دے مزار تو لب جان اوتھے تماکہ کر چڑی. یہ دا مطلب جڑی او دے ذہن دے وچ توحید ہے او دی نظر دے وچ قبلہ جنے شیعہ بیٹھے نے او بھی مشرک نے. اذہان بیدار کریا جی قبلہ یہ دا مطلب جڑے اہل سنت نے یہ جڑے داتا دربار سلام کرتے ہیں نا انہاں دی نظر دے وچ مشرک نے قبلہ. انہاں دے ذہن دے وچ جڑی توحید ہے او دے وچ قبلہ او سمجھدے نے کہ اے بھی مشرک نے او بھی مشرک لے. لو جی قبلہ اساں بھی تماکے کروا لے نے ماتم کر کے تے اہل سنت دوستاں نے بھی مزاراں تے سلام کر کے تماکے کروا لے نے. میرے عزیزو بندے پاویں ساڈے نال پیر بھائی ساڈے بنن تے پاویں نہ بنن شرک بھائی سارے کٹھے ہی ہیں. واہ بھائی بھائی ہاتھ سلامت رہے الحمدللہ اسی شرک بھائی اکٹھے ہیں. میرے عزیزو انہاں دی نظر دے وچ او بھی مشرک نے انہاں دی نظر دے وچ اسی بھی مشرک ہاں. میرے عزیزو یہ دا مطلب ہے کہ اسی بھی انہاں دی نظر دے وچ مشرک تے او بھی انہاں دی نظر دے وچ مشرک. لو جی مشرک دے وچ اسی اکٹھے ہو گئے جڑی آئمہ دی دیتی توحید ہے وہ بیان کرنا چاہنا وا. آئمہ دی دیتی ہوئی توحید دے وچ اے وے نہ او دی ذات وچ کوئی شریک ہے صدقے جاواں نہ او دی قبلہ صفات وچ کوئی شریک ہے. جڑا اللہ تو علاوہ سمجھے کہ اس ذات تو علاوہ بھی کوئی ایسی ذات ہے وہ کل بھی کافر سی. اذہان بیدار کریا جی قبلہ میں تمہید پیا کر اگے میں آیتاں پڑھدیاں نے قبلہ. میرے عزیزو یہ مطلب ہے وہ کل بھی کافر سی وہ آج بھی کافر ہے کل بھی مشرک سی وہ آج بھی مشرک ہے. میرے عزیزو یہ مطلب ہے لوگ کیا میں انیا ہو گیا تھے وہ دے جیسا کوئی نہیں. اسی اس مرید اس انسان اکمل دا جڑے جاندا ہے کہ وہ کیسا ہے صدقے جاواں. میرے عزیزو لوگاں نے ہوا جا چھڑے وہ دے جیسا کوئی نہیں. اسی اس پیر کامل دے مرید ہاں جڑا جاندا ہے وہ کیسا ہے. میرے عزیزو میرے مولا فرماندے نے مولا علی علیہ السلام کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے کوئی نہیں پہچانتا کہ وہ کب سے ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی ماہیت کیا ہے. میرے عزیزو میرے مولا فرماندے نے جس نہج پہ وہ اسے سوچتے ہیں وہ تو نہجوں کا خالق ہے. کیا بات ہے بھائی جڑے نال نال چل دے آ رہے ہیں جس سطح پہ وہ سوچتے ہیں وہ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہ بھی کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے. فرماندے نے جس سطح پہ وہ اسے سوچتے ہیں وہ تو ان سطح کا خالق ہے. یہ کیسے بندے ہیں جو مخلوق کے ذریعے خالق کو سوچتے ہیں. واہ بھائی بات صدقے جاؤ صدقے جاؤ بہت شکریہ. یہ مطلب ہے یہ کیسے بندے ہیں جو مخلوق کے ذریعے خالق کو سوچتے ہیں. میرے عزیزو یہ ذات وچ
शरीक है ना उसकी सिफात विच कोई शरीक है। ये कैसे बंदे हैं? मेरे मौला फरमाते हैं जिस नहज पे ये सोचते हैं ना वो तो उन नहजों का खालिक है। ये उसके करने से देख कर कहते हैं वो ये भी करता है, वो ये भी करता है, वो ये भी करता है। मेरे दो में हाथ कुरानते नहीं, मेरे मौला फरमाते ने वो उसके करने को देख कर कहते हैं कि वो ये भी करता है, वो ये भी करता है, वो ये भी करता है। वो जिस तरह उसे मानते हैं वो तो हम हैं। हाय हाय सड़के जाओ, ये हाथ सलामत रहे जी। वो जिस तरह उसे मानते हैं वो तो हम हैं। ये उसके करने को देख के कहते हैं वो ये भी करता है, वो ये भी करता है, वो ये भी करता है। ये उसके करने को देख के उसे कहते हैं वो अल्लाह है और हम 14 वो है। अगर वो कुछ ना भी करे तो हम कहते हैं वो अल्लाह है। वाह भाई वाह, सड़के जाओ, सड़के जी बहुत शुक्रिया कि जो उसके करने सदके जी मौला जिंदगी दराज करे। मेरे अजीजों का मतलब है जो उसके करने को देख कर कहते हैं कि वो है। मेरे अजीजों खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया ये अल्लाह दी हम दे विच केड़े आंदे फरमांदे ने वो तो हम है जो ये करते हैं। अल्लाह दी हम च केड़े आंदे ने? लो जी मैं दसन लगा मैं तशरीह करना चाहना कि अल्लाह दी हम दे विच केड़े केड़े आंदे। अल्लाह जिन्हां दे फरमांदा है कि ये हम है, हम करते हैं, ओदे विच किबला फरमाना ये अफान शाह जी हो रही है। ये मजलिस किबला हर साल होंगी सफर का दूसरा इतबार। अगर कोई बंदा शाह जी होरां मिल के आखे कि शाह जी मजलिस थोड़ी करीब आ रही है ते वेख्या जे मजलिस विच कोई ऐसी वैसी गल ना हो। मैं बैठक दे विच बैठा सा ते मैनूं उत्थों भी हुक्म कीता ने कि वेख्या जे ऐसी वैसी गल कोई ना हो। मेरे अजीजों उन्होंने आख्या कि ऐसी वैसी देखो शाह जी बंदे दो ने। अरफान शाह जी होरां अगर कोई रस्ते दे विच मिल पैंदा तो बंदा वो भी एक ही है ते शाह जी होरी भी एक ही ने। वो आंदे ने देखो ऐसी वैसी कोई गल ना करिया जी। मैंने बैठक दे विच भी हुक्म कीता ने ऐसी वैसी गल पहले नंबर ते आखिरी बंदे तक मैं सारे बंदियां नूं मुतमिन कर ला जिहड़े आंदे ने ना कि ऐसी वैसी गल ना करिया जी। कदी सोचिया भी जे ना क्या असी कोई ऐसी वैसी गल करांगे? मेरे दोवें हाथ कुरानते नहीं। असा क्यों ऐसी वैसी गल करनी है? असा किसी ऐसे वैसे नूं मन्ने ही नहीं। हाँ भाई बात सदके जा, बहुत शुक्रिया कि बोला सदके जा। पहले नंबर ते किबला ये चीज है असा क्यों करनी है किबला? असी ते वो अक्षर बयान कर देना कि जिदा गाइए जिदा खाइए ओदे गुण गाइए। असा किसी ऐसे वैसे न मने असी ओदा जिक्र क्यों करना है किबला? मेरे अजीजों कोई ऐसी वैसी गल ना कराया जे। वो बंदा किबला मिल पवे अरफान शाह जी और उथे वो आखे देखो शाह जी चंगे भले बसने पे अमन अमान दे नाल पे रहने ते देखो मजलिस तुहाडी आ रही है ते वेख्या जे कोई ऐसी वैसी गल ना कराया जे। जिदों शाह जी होरां ने आखना ना कि मैं कोई गल नहीं करदा इंतहाई तवज्जो किबला मैं पैगाम देना चाहना। अगर शाह जी होरी आखना देखो मैं कोई गल नहीं करदा उस बंदे आखना तुसीं ते अगे ही नहीं पे गल करदे कोई आ जेड़े सदे जे उन्हां दे मुतल्लक गल पिया करना। इहदा मतलब है जे ते शाह जी होरी आखना कि मैं कोई गल नहीं करांगा उन्हां आखना तुसीं ते अगे कोई गल नहीं करदे आ जेड़े सदे जे। इहदा मतलब है मैं दे विच कल्ले शाह जी होरी आंदे ने ते जे अगर शाह जी होरी उन्होंने आखन कि असी कोई ऐसी वैसी गल नहीं करदे असी कोई ऐसी वैसी गल नहीं करदे। जो शाह जी होरां ने आखना ना कि असी ऐसी वैसी गल नहीं करदे ओहदे विच जाकर भी मुहतात रहन। भाई बात सदके जावां जिन्हां तक पैगाम पहुंच रहे ओहदे विच किबला सानू भी मुहतात रहना चाहिए ते सिर्फ जाकरा मौलवियां नहीं तुसां भी मुहतात रहना। जो शाह जी होरां ने आखना ना कि असी कोई ऐसी वैसी गल नहीं करदे ये शाह होरां दी असी दे विच ये सारे मोमन आंदे ने। मेरे अजीजों मेरे दोवें हाथ कुरान दे नहीं कोई भावे गैर सैयद भी होवे ये बड़ी खुशकिस्मती दी गल है कि तुसी सारे सैयदां दी असी विच आंदे हो। हां भाई बात सदके बहुत शुक्रिया। जिन्हें कि बला उम्मती बैठे ने बड़ा फखर है कि तुसी सैयदां दी असी दे विच आंदे। जो शाह जी होरां ने आखना कि असी कोई गल नहीं करांगे ओहदे विच असी भी मुहतात हां जाकर भी मुहतात ने ते तुसी भी मुहतात रहना। क्यों? क्योंकि तुसी सैयदां दी असी विच आंदे हो। हुण शाह जी होरी आखन कि देखो भाई असी कोई गल नहीं करांगा लेकिन तुसी भी हाय हाय इमामना ने लंघदे किबला तबर्रा नहीं करना। ते जो शाह जी होरां ने आखना देखो
اسی اپنے مذہب دے متعلق کہنے ہیں کہ اسی کوئی گل نہیں کرانگے لیکن تسی بھی کوئی گل نہ کریا جے مومناں نوں لنگدے ہیں کوئی گل نہیں کرنی انہاں دی تسی دے وچ سارے اہل سنت آ گئے سیداں دی اسی دے وچ سارے مومن آ گئے صدقے جاواں سارے مومن آ گئے یہ مطلب ہے وہ بھی محتاط نے رکھ علماء دے سر تے قرآن تے پوچھ اللہ قرآن پہ فرماندا ہے نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں رکھ علماء دے سر تے قرآن تے پوچھ اے اللہ دی اسی چ کیڑے بندے آندے نے بھائی بات صدقے جمال ہے زندگی رات اے یا رسول اللہ اے یا اللہ صدقے جامان کیا بات ہے یہ دا مطلب ہے رکھ علماء دے سر دے قرآن تے پوچھ اے اللہ دی اسی دے وچ کیڑے کیڑے آندے نے میں قبلہ قرآن دے وچ پڑھن لگا کہ اللہ دی اسی دے وچ کیڑے آندے نے آ رب دا قرآن اللہ فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى ہم موت دیتے ہیں صدقے جا اور ایک جگہ اللہ فرماتا سورہ واقعہ دے وچ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو ایک ملک الموت ہے جو تمہیں موت دے گا یہ مطلب ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی موت دینے ہیں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وہ تو ملک الموت ہے جو تمہیں موت دے گا اتھے اللہ نے فرمایا اس چیز دا اچھا موت ملک الموت دیندہ ہے اللہ فرماتا ہے اسی دینے قرآن جبریل لے کے آندہ ہے اللہ فرماتا ہے اسی بھیجنے ہدایت نبی دیندے نے اللہ فرماتا ہے اسی دینے ہیں یہ مطلب ہے کہ جڑا کام ایک عالم نے بڑا خوبصورت قبلہ ترجمہ کیتا ہے وہ آندے نے کہ جو کام اللہ نے موت کا نظام خلق کیا ہے اللہ نے موت کا نظام خلق کیا ہے قائم کیا ہے اس نظام کے تحت اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو موت دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وہ ہم دیتے ہیں کیا بات ہے بھائی موت فرشتہ دیندہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اسی دیندے ہیں اب وہی جبرائیل لے کے آندہ ہے اللہ فرماتا ہے اسی دیندے ہیں ہدایت نبی دیندے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اسی دیندے ہیں وہ فرماتے ہیں اصل میں وہ فرشتہ موت دینے میں غلطی نہیں کرتا کیا بات ہے بھائی صدقے جاون کیونکہ فرشتے تے شیطان نہیں آ سکتا فرشتے تے قبلہ معصوم ہے وہ جڑا کام کرے تے او دے چ غلطی نہ کرے او دے کام نو اللہ اپنا کام ماندا وے میرے عزیزو اگر نبی کو کام کرے تے اللہ فرماندا ہے تو نے کیتا اے میں کیتا ہے ہائے ہائے نبی کنکر مارے اللہ فرماندا تو نہیں مارے اے میں مارے نے موت جبرائیل دے اسرائیل دیندا ہے اللہ فرماندا میں دینا ہدایت جبرائیل لے کے آندا ہے اللہ فرماندا ہے ایسی بھیجنے ہیں وہ فرماندے جڑا کام کرے تے غلطی نہ کرے او دے فعل نو اللہ اپنا فعل آندا ہے آخری بندے تک توجہ جی جڑا کام کرے تے کام کرن چ غلطی نہ کرے او دے فعل نو اللہ اپنا فعل آندا ہے اج میں فرشتیاں دے فعل نو اللہ اپنا فعل آندا ہے میرے دوویں ہاتھ قرآن تے نہیں مینوں رب کعبہ دی قسم حضرت محمد مصطفیٰ نو یتیم کرن تو بعد ابو طالب دی کوچ رکھ کے اللہ فرماندا ہے تو نہیں پالیا اینو میں پالیا اللہ بھائی جی صدقے صدقے جاویں کیا بات ہے تہاڈی سماعت دی کیا بات ہے ابو طالب دی گود وچ رکھ کے اللہ فرماندا ہے تو نہیں پالیا اینو میں پالے اینو میں پالے یہ مطلب جڑا غلطی نہ کرے آج تک کسی نے حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پھر تے شک نہیں کیتا کہ حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون لگدا مارن دا اللہ مارے ہاں کبھی آج تک کسی نے حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پھر تے شک نہیں کیتا کی گل علیہ السلام نہ تہاڈا کی خیال ہے میں قبلہ بوٹی پی کے آیا ہاں میں جان کے آکھے آمدن آکھے رضی اللہ بندے مننے ہی نہیں انہاں آکھے مولوی کیڑی گل پہ کرنا میں جنہاں دے کام نو اللہ اپنا کام آکھے نا اور رضی اللہ نہیں ہوندے علیہ السلام ہوندے نے ابو طالب دے پھیر دے شک نہ کری ابو طالب نبی دی اور اللہ دی حامد وچ آندے نے او جنہاں نو اللہ حام آکھے انہاں دے کلمے تے شک نہیں کری واہ بھائی واہ صدقے شکریہ گیا صدقے جاواں یہ مطلب ہے انہاں دے پھیل نو اللہ
सदके जाओ ਇਹਦਾ मतलब है कि नबियां दे फेल ਨੂੰ अल्लाह अपना फेल आंदा अल्लाह ने मुस्तफा ਨੂੰ हजरत अबू तालिब दी गोद च रख के फरमाया अल्लाह मुझे जिसका यतीमन खावा इनु तू नहीं पाले इनु मैं पाले इनु तू नहीं पाले इनु मैं पाले ओए अल्लाह दे बंदे अगर शक करना ही ते किसे रजी अल्लाह दे ईमान ते कर अलैहिस्सलाम दे ईमान ते क्यों सदके जाओ अलैहिस्सलाम दे ईमान दे शक नहीं करीदा मेरे अजीजों हुण बंदे कई सोचदे ने कि शिया जिहड़े ने ना मुहम्मद वाले मुहम्मद दे नाल ऐसे ऐसे लफ्ज फिट करदे ने कि जिहड़े सिर्फ अल्लाह वास्ते आंदे ने होर किसी बंदे वास्ते नहीं आंदे ये सिर्फ अल्लाह दे नाल लगदे ने मसलन एक बंदे ने आख्या अली रब ते बंदे आख्या देखिया है ना मुशरक तुहाडे विच अली नूं रब पे आंदे ने ए अली नूं रब आख्या इहदे विच मुशरक है ना तुहाडे मैं एक बंदे को आख्या ये जिस बंदे गल की मैं आख्या ये बूटी पींदा क्या बात है सदके जावां जेडे पहुंचे उस आख्या ये अली रब जड़ा पे आंदे ने ना ये तुहाडे इंज दे भी ने विच मुशरक ने ना मुशरक मैं आख्या ये जिस अली रब आख्या ये बूटी पींदा कहने लगा नहीं ये चरस पींदा कहने लगा नहीं पूछया होली है ये चरस पींदा है उस आख्या नहीं ये तम्बाकू वाला पान खांदा है उस आख्या नहीं मैं आख्या ये पठाना वांगू नसवार रखदा है उस आख्या नहीं नशा कोई भी नहीं करता चंगा भला बैंक का मैनेजर है चंगा भला पढ़िया लिखिया है तुहाडे इहो जिहां दी भी मत वजी है चंगा भला बैंक का मैनेजर है ते बैंक का अफसर है ते ये गल वो इहो जे भी तुहाडी जिहड़े ने गल करदे वो जो इन्नी गल कीती मैं आख्या देख जे ते अगर वो नशा करदा ना फिर मैं तो जिम्मेदार नहीं ते जे अगर पढ़िया लिखिया ना तो फिर ठीक आख्या सदके जावां आखिरी बंदे तक तवज्जो जी जे तो पढ़िया लिखिया ना तो फिर जे आख्या सुनाली रब तो फिर ठीक आख्या फिर ठीक आख्या तो जे अगर नशई है ना जे नशे की हालत में मैं उसका जिम्मेदार नहीं इस वास्ते कि नशे की हालत जो मर्जी बंदा पे आखे जो मर्जी पे आखे मैं आख्या जे ते अगर नशा करता तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं वैसे ये ना सोचा जे कि नशई अल्लाह नहीं मानते नहीं किबला मानते नशइयां का मतलब आखिरी बंदे तक तवज्जो जी नशइयां का मतलब ना सोचा जे कि अल्लाह नहीं मानते ने किबला जे जिदा वो मानते ने हाय हाय सदके जाओ वो तो कमाल है आ रब दा कुरान अल्लाह ने इको बारी आख्या कुरान दे विच सूरह निसा दे विच अल्लाह फरमांदा ला तकरबुस सलात व अंतुम सुकरा अगर तुसी नशई हो तो मेरी नमाज दे नजदीक ना आया जे उन्हें आख्या ठीक है भाई बात सदके जाओ जेडे पहुंच गए क्या बात अल्लाह ने इको बारी आख्या कि भला होर की मनन यही तो मनन उन्हें आख्या जी असीं मानने आ असीं ते मानने असीं मानने अल्लाह ने इको बारी आख्या ला तकरबुस सलात व अंतुम सुकरा अगर तुसी नशे दी हालत दे विच हो ते फिर नमाज दे करीब ना जाया जे उन्हें आख्या जी असीं ते मानने आ ना नमाज असीं नशा छड्डांगे ना तेरी नमाज दे नजदीक आवांगे क्या बात भाई ना आया जी असल में वजह की है जो अल्लाह ने फरमाया ना कि मेरी नमाज के नजदीक ना आया जे वो किबला नशे तो नफरत की वजह तो आखिया नशे तो नफरत की वजह तो आखिया कि अगर तुम नशाई हो तो मेरी नमाज के करीब ना आया जे ये जिन्होंने हुण इस चीज़ का वाटे कि अली रब पे आते हैं आ रब का कुरान ते आ सूरह मुबारक यूसुफ पे पढ़ना जिन्होंने बंदियां अली रब के वट पे चढ़ देना उन्होंने वास्ते उन्हें आख्या थोड़े ते इहो जी नौबत वजी उस बंदे की दलाल वास्ते आ रब का कुरान अल्लाह फरमांदा या साहिबा यसिजनी अम्मा अहदुकुम्मा फयस्की रब्बहु खमरन हजरत यूसुफ तबीर पे दसते हैं किन्हां नूं वो जिहड़े कैद खाने दे विच दो बंदे सन तुहानूं पता कैद खाने दे विच बड़े बड़े औंतरे बंदे सन नबियां दा जिन्हां बंदियां नाल वाह पिया ना बड़े बड़े औंतरे बंदियां दे नाल वाह पिया कई बंदियां ने किबला बेचारे बड़े बड़े अक गए ने वो कैद खाने दे विच दो बंदे सन मैं किबला तफसीर दे विच इंज ही पढ़िया कि ख्वाब एक तफसीर दे विच बयान किया जाता एक तफसीर दे विच बयान करते हैं कि ख्वाब कोई नहीं सी आया उन्हें जान के आख्या वो दो बंदे जिहड़े कैद खाने दे विच इंज बैठे सन उन्होंने आख्या तू नबी है मैं तुसी नहीं कह सकता क्योंकि जिन्होंने अगे ही शक हो तुसी तो नहीं ना कहते उन्हें आख्या तू नबी है उन्हें आख्या जी मैं नबी सुनिया तू ख्वाबां दी तबीरां दसना हजरत यूसुफ ने फरमाया हाँ मैं दसना ख्वाबां दी तबीरां दसना उस आख्या फिर सानू ख्वाब आया दोवां ने इरादा करके आख्या सानू ख्वाब आया कोई तबीर तो दस हजरत यूसुफ ने फरमाया पूछो की पूछ ले एक ने आख्या कि मेरे सिर के उत्ते रोटियां का टोकरा है तो उहदे विच परिंदे पे खांदे एक ने आख्या कि मैं बादशाह वास्ते शराब पिया करना इन्हां दोवां ने आख्या कि तबीर दसो
तबीर दसो अपने को इन्हें गल की जेड़े मेरे आख्या ना तबीर दसो उस टाइम हजरत यूसुफ की आवाज आई फरमाते ने कि जिसके सिर के उत्ते रोटियां का टोकरा है ना इनू फांसी लगेगी क्या बात भाई नबी तबीर पे दसते हैं सार का गोश्त परिंदे खाएंगे और जिन्हें आख्या कि मैं बादशाह वास्ते शराब पिया करना वा वो जो गल की फरमाया अन करीब तुम में से ये वाला आजाद होके अपने रब को शराब पिलाएगा रब अगर ज़हन दे विच होवे बंदे नाल हों तो लुत्फ आएगा फरमाया तुम में से अन करीब एक आजाद होकर किसको पिलाएगा शराब अपने रब को रब दा रब्बहु कमरन वो अपने रब को शराब पिलाएगा ਇਹਦਾ मतलब है फिर कुरान दा अगर पता हो भी मैं तो नहीं ना लिखिया ये रब दा ही कलाम है ना हाय हाय सदके जावा अल्लाह पे फरमांदे और हजरत यूसुफ नबी होकर फरमांदे ने कि जब तू उसके पास जाए तो अपने रब का किस पास मेरा जिक्र करना अल्लाह दिया बंदिया साडे मगर ना चढ़ जा ए रब कोलों पूछ अल्लाह रब किनू प्यार है हाय हाय सदके जाओ सूरह मुबारक यूसुफ पे पढ़दा किबला ये अल्लाह रब दा कलाम है ना अल्लाह पे आंदा वो जेड़े वेले इन्नी गल कीती कि अपने रब के पास जाएगा इहदी मैं तफसील बाद च बयान करदा वो जेड़े वेले आख्या ना कि जे सर दे उत्ते रोटियां दा टोकरा ओदे फांसी लगेगी ते परिंदे ओदे सर दा गोश्त खाणगे वो जेड़े वेले इन्नी गल कीती ते दूसरा आजाद हो के ते अपने बादशाह वास्ते शराब कढेगा ओहनू जिन्ना फांसी दी गल सुनी वो अगों हंस के कहन लगा विचों तो मुक गया सी ना हाय हाय मौत की खबर सुन के विचों मुक गया सी कहन लगे हजरत यूसुफ नूं वेख के कहन लगा मैं ते उंज पिया करदा सा मैनूं ते ख्वाब नहीं आया मैं ते उंज पिया करदा सा हजरत यूसुफ दी आवाज आई तू उंज करदा सा मैं ते उंज नहीं ना करदा हाय हाय सदके जाओ हजरत यूसुफ दी आवाज है तू उंज पिया करदा सा मैं ते उंज नहीं ना पिया करदा अगर कल नूं फांसी ना लगे तो मैं नबी नहीं सदके जा फरमांदे ने मैं उंज पिया करदा सा दूसरे जेड़े वेले ख्वाब दी तबीर दसी आ रब दा कुरान फरमांदे ने रब्बहु कमरन तो वो अपने रब को शराब पिलाएगा अपने रब को आगे फरमांदे ने इज़कुरनी इंदा रब्बिका फअंसाहु शैतानु जिक्र रब्बी तो जब वो अपने रब के पास पहुंचा तो शैतान ने उसे बुला दिया हजरत यूसुफ ने आख्या सी जो अपने रब को जावे ना तो उदों मेरा जिक्र करी एदा मतलब है कि रब ते कोल जावे यूसुफ मुंह चो कढे कि जो अपने रब को जावे ते मेरा जिक्र करी एक ऐसा रब है जिहड़ा शराब भी पींदा है फिर तेनू मनना पेगा और शराब पीण वाले रब होर हुंदे ने शराबियां नू कोड़े मारन वाले रब होर वाह भाई बात सदके बहुत शुक्रिया ਇਹਦਾ मतलब शराब पीने वाले रब होर ने शराबियां नू कोड़े मारन वाले रब होर ने हुण की बला मेरा दिल करदा कि मैं एक तर्जमा करा जिहड़ा मेरे कोल दियो बंदियां दा तर्जमा है ना कई बंदे आंदे ने किबला कि शिया तर्जमा करन ते लोकी आंदे ने अपनी अकीदत विच पा लैंदे अहले सुन्नत दोस्त अगर तर्जमा करन कुरान दा ते ओदे विच भी आंदे ने कि अपनी अकीदत पा लैंदे ने मेरे कोल तर्जमा में बगैर अकीदत तो सदके जावां दी क्या बात जिहदे च राई दे दाने बराबर भी अकीदत कोई नहीं जो बंदियां ने मेरे को तर्जमा मेरे अजीजों इहदे च फरमांदे ने कि हजरत यूसुफ ने कहा कि जब तू अपने रब के पास जाएगा ना उन्होंने रब का जो तर्जमा किया है ना आ थले लिखे आवे उन्होंने लिखा है कि जब वो जाएगा ना अपने खामंद के पास लुत्फ पड़ा कि बला तुसा महसूस नहीं किया कई बंदियां ने उन्होंने खामंद का तर्जमा रब का तर्जमा खामंद किया उन्हें आख्या जो रब है ना वो खामंद है इसका मतलब है जिन्ने बैठे ने ना सारे समेत मेरे इन्हों का रब कोई भी नहीं अल्लाह के बंदे कभी बंदियां भी उन्होंने रब का तर्जमा खामंद किया वो जो कैद खाने चुपे जाते हैं वो भी बंदे ने तो अगों जाके जिन्हों सलाम करना में या जिदे जाकर जिक्र करना में वो भी खामंद ही है मैं हैरान हाँ कि इन्होंने मसलक के भी बंदियां दे भी शौहर होंगे ने क्या बात है भाई खामंद जो जा रहा वो आते हैं पे हजरत यूसुफ कि जाएगा ना जो अपने खामंद को जाएगा तो जाके ते मेरा जिक्र करी ये मतलब जो जा रहा वो भी बंदा है जो अगे जिदे को जा रहा वो भी बंदा है तो आते
अपने खामद को जो जाएगा मैं तो समझना कि ये मौलवी साहब ना किधरे उत्थे बैठे रहे ने जिथे बीबियां सेवियां वटदियां वो किबला वटदियां आंदियां ने लगा सी भैन जुत्ती ला के मारन मैं तो चुप ही कर रही हूं मैं तो चुप ही कर रही हूं मैं आख्या आखिर मजाजी खुदा है ये मजाजी ये जड़ियां असल दे विच मजाजी कोई नहीं ये मजाजी है हकीकत दे विच ओ रब है हाय हाय सदके जावां हकीकत च किबला ओ रब है ते मजाजन शौहर रब हुंदा है किबला अपनी बीवी दा इस वास्ते कादे वास्ते क्योंकि ओदे रिज़्क दा सबब बनदा है ते जेड़ा रिज़्क दा सबब बने ओ किबला भावें अजीज मिस्र भी होवे हाय हाय अजीज मिस्र दे कोल गए ना जब अपने रब के पास जाए ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ मतलब है ਜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ऐ मेरे रब मेरे उन दो रब्बों पर रहम फरमा जिसने हमें छोटे से पाल कर बड़ा किया हाय हाय सदके जाओ रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ऐ मेरे रब मेरे उन दो रब्बों पर रहम फरमा आखिरी बंदे तक तवज्जो जी ऐ मेरे रब मेरे उन दो रब्बों पर रहम फरमा जिन्होंने मुझे छोटे से पाल कर बड़ा किया इसका मतलब है अजीज मिस्र नूं भी अल्लाह ने कुरान च रब आख्या है मां प्यो नूं भी रब आख्या है कादे वास्ते इस वास्ते कि रिज़क दा सबब बनदे ने ते जेड़ा रिज़क दा सबब बने ओ मेरे अजीजो रब हुंदा है ओनू अल्लाह ने कुरान दे विच रब आख्या जे अज तो बाद अली या अली मदद नहीं ना आखना ते अज तो बाद प्यो कोलों फीस ना मंगी हाय हाय सदके जावा मां कोलों रोटी ना मंगी मैं बेड़े दे विच कुरान चो किबला मैं पढ़ रहा मैं त्रै रब एक अजीज मिस्र है एक अल्लाह फरमाया रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ऐ मेरे रब मेरे उन दो रब्बों पर रहम फरमा इसका मतलब एक और रब है मां प्यो भी रब ने फरमाया मेरे उन दो रब्बों पर रहम फरमा जिन्होंने मुझे छोटे से पाल कर बड़ा किया मेरे अजीजों इसका मतलब है कि मैं मुंडे देखे ने किबला वेड़े दे विच अड्डियां रगड़दे मैं नहीं टींडे खाने मैं नहीं टींडे खाने मैं नहीं टींडे खाने मां कोली फड़ के नाल दे घर टुर जांदी है की पक्का जे ओ जड़ी तेरे वास्ते कार दी मांगत बन गई है ओदा एहतराम कर हाय हाय सदके जा जड़ी तेरे वास्ते कोली फड़ के नाल दे घर टुर जांदी है की पक्का जे मेरा पुत्र भुखा वे ओ जड़ी तेरे वास्ते कार दी मांगत बन गई है ओदा एहतराम कर ओ तेनू मनना पेगा जड़ा मंग के पाले ओ रब होर जड़ा दे के पाले ओ रब होर सदके जावा जड़ा मंग के पाले ओ रब होर अल्लाह जरा किबला मंग के पाले रब हो रहे जरा दे के पाले रब हो रहे बड़ी जल्दी कर रहा किबला जरा दे के पाले और रब हो रहे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं मैं जेड़े वेले काबे गया ना हज करन वास्ते ते उत्थे मैनूं एक हादसाबाद दा बंदा मिल पिया उत्थे मैनूं जदों मिलिया ते कहन लगा किबला की हाल है और मैं क्या ओ किबला ओदे सामने ते शर्म करना हाय हाय सदके जावां काबे दे कोल खलो के अस आख्या किबला की हाल उन्हां आख्या इत्थे दी शर्म करो सामने किबला उन्हां दे नाल ओ सामने ही होसा ओ मुड़िया ना कहन लगा किबला मैं तुहाडी गल पिया करना मैं ओदी गल नहीं पिया करदा एदा मतलब जदों किबला दा लफ्ज़ उलमा ते आएगा ओदों माने होर ने क्या बात है जदों अली दी आमद दे खाने ते आएगा ओदों माने होर ने मेरे अजीजों एदा मतलब है त्रै रब ने केड़ा केड़ा जेड़ा मैं कुरान च पढ़िया अजीज मिस्र ते आएगा ते फिर रब दे माने होर ने जदों वालदैन ते आएगा ओदों माने होर ने मेरे अजीजों जेड़ा रिज़्क दा सबब बने ओ कल भी रब सी ओ आज भी रब है जेड़ा किसे नूं पाले ओदा रब है जेड़ा जिन्नू पाले ओदा रब है ओ जे इत्थे बैठे हो सीधे मदीने आओ ते मदीने मक्के आओ जेड़ा जिन्नू पाले ओदा रब है अल्लाह दे बंदे तू अबू सुफियान नूं मुआविया दा रब भावें मन ते भावें ना मन मैं ते मनना अली दा प्यो मुहम्मद दा रब है हाय हाय सदके जा सदके मौला दी
जनाब मैं जनाब को इजाजत लेना चाहना मेरे अजीजों ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਪਲੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਸਬਬ ਤੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता कोई नहीं जानता किबला जानता सबके जानता तो हामी पर वो केड़ा कोई थे उन्होंने नाम लिया परचा हो जाता किबला मैं वैसे पूछा कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान को जानते हो वो किबला मैं हैरान हाँ कि वो भी बंदा किसी का मतलब कह सकता है कि फलाना बंदा शक करता है या फलाना बंदा जड़ा शिरक करता है मुशरक है उन्होंने किबला जरदारी भी आंदा है मौलाना उन्होंने नवाज शरीफ भी आंदा मौलाना उन्होंने शबाज शरीफ भी आंदा भी मौलाना वो दोवें शरीफैन भरा जड़े ने ना वो भी उन्होंने मौलाना आंदे आ रब दा कुरान जिन्होंने अली रब ते वट पिया चढ़ता है ना उन्होंने मुतल्लिक गल पिया करना आ रब दा कुरान अल्लाह फरमांदा है रब्बना वाला तुहिम्मलना माला ताकताला ताकत ला भी है हमारे रब मैं इहदा शरीक किथों लभा जड़ा मंगन की जांच भी आप पिया दसदा है हाय हाय अल्लाह फरमांदा मेरे को दुआ करया करो ए हमारे रब हम पर इतना बोझ ना डाल कि जिसको बर्दाश्त करने की हम में ताकत नहीं आगे अल्लाह फरमांदा है वाफू अन्ना और हमें माफ कर दे अल्लाह फरमांदा है ये दुआ करया करो कि साढ़े ते इन्ना बोझ ना पा जिन्हों उठाने की साढ़े ताकत नहीं तो फिर मेरे को दुआ करया करो कि वाफू अन्ना हमें माफ़ कर दे और की करा फरमांदे ने बाग फिर लाना और हमें बख्श दे अच्छा और की करा फरमांदे ने वर हम ना और हम पर रहम फरमा अल्लाह फरमांदा है सारे काम मैं क्यों करा सारे काम मैं क्यों करा अल्लाह फरमाता फौरन आखो अंत मौलाना इसलिए तू कर कि तू हमारा मौलाना है क्या बात भाई सदके जाओ तू हमारा मौलाना है मेरे मतलब है कि सारे ये अल्लाह दे मौलाना कौन है जी मौलाना अल्लाह मौलाना है मैं आना जिस बंदे नूं कई बंदे ऐसे ने कि जिन्होंने उन्होंने अपना खतरा नहीं जिन्होंने तौहीद नूं खतरा पे समझते हैं वो मेरे अजीजों मैं आना वा कि ये बंदा भी किसी को कह सकता है कि फलाना बंदा शिरक करता है हालांकि किबला जी अली रब के वट पे चढ़ता है तेरा हक बनता है कि बंदे बंदे को खवावे मौलाना मौलाना 10 बंदियां मैं नहीं ओ वे मौलाना हाय हाय सदके जा तू अली रब के मगर पे चढ़े आ ते हर बंदा तेनों पे आंदा मौलाना मौलाना और 10 पूरी दुनिया नो कि मैं नहीं ओ वे मौलाना ओ जे मौलाना अल्लाह फरमांदा अंत मौलाना मैनू आको मौलाना क्यों सारे काम करा फरमांदे ने इसलिए अंत मौलाना जो मैनू आखो ना कि मैं मौलाना वा फौरन आखो फन सुरना और अगर तू मौला है तो फिर हमारी मदद फरमा हाय हाय ये जड़ा मौलाना होवे ना वो किबला मदद करदा जे अल्लाह फरमांदा उहदे कोलों मदद लई दी है आ कैसे मौलाना ने जड़े रोज ऐलान करदे ने मसीह दी भी मदद कर जो मेरी भी मदद कर जो सदके जाओ मौलाना मदद करते हैं मेरे जिन्होंने अली रब के वट पे चढ़ते हैं इन्होंने बंदियां का मतलब मैं हैरान कि जड़े सानू पे आते हैं मौलाना ये अल्लाह में मौलाना अल्लाह में ना मौलाना आखिरी बंदे तक तवज्जो साढ़े मगर ना चढ़ी अल्लाह कुरान च फरमाता फमा जनता को नील हवा मेरा नबी तो उन्नी देर तक बोलता ही नहीं जिन्नी देर तक मेरी वही ना आ जाए जिन्नी देर तक मेरी वही ना आ जाए ये मेरे हुक्म तो बगैर बोलता ही नहीं जे तुम मान गए बनसे कुरान के नबी अल्लाह की मर्जी तो बगैर नहीं बोलता पर जरा 1.25 लाख दे विच मन को तो मौला आख्या तू ये अपनी मर्जी नाल आख्या तू कि मौला दी मर्जी नाल हां भाई बात सुन के जा बहुत शुक्रिया कि बोला ये जरा 1.25 लाख दे विच आख्या मन कुंद मौला ये अपनी मर्जी नाल आख्या तू कि मौला दी मर्जी नाल आख्या तू मैं क्या खालक तू घट मौलाना में तू मौलाना घट है इन्हां दोवां भरावां नूं मौलाना क्यों बनाए हाय हाय सदके जाओ तू जो मौलाना में ते इन्हां दोवां भरावां नूं मौलाना क्यों आखे तू घट से अल्लाह फरमांदा बंदे बड़े चवल ने मैं सामने नहीं आंदा ते आंदे ने जी मानने आ जी मानने आ मानने आ जी मानने आ मानने आ जी मानने आ मैं खुम्मे गदीर इन्हां दोवां भरावां नूं सामने कर दित्ते उत्ते मौला मैं वां थल्ले मौला ए ने जड़ा इन्हां नूं मान गया मैं समझांगा मैनूं भी मान गया
हाय हाय सदके जावा जी, बहुत शुक्रिया, सदके जावा। जड़ा इन्हां नूं मन गया मैं समझांगा मैनू भी मन गया, ते जड़ा इन्हां दा मुनकर है कल भी मुनकर सी। हाय हाय ओ मेरी तौहीद दा कल भी मुनकर सी, ओ अज भी मुनकर है। अल्लाह दी आवाज़ है, मैं सामने नहीं आंदा ते बंदे बड़े चवल ने अगों आंदे ने मानने जी मानने मानने जी मानने। मैं ना दुआ भरावां नूं सामने कीता, ये भी मौलाना ने, ये अल्लाह फरमांदा ना कि मेरे इज़्ज़त तो बगैर बोलदा भी नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये तो मेरा नबी नुतक भी नहीं करदा मेरी मर्जी तो बगैर। ਇਹਦਾ मतलब है ओदी मर्जी दे नाल आखे ते नबी ने मुंह कढवाया, फरमाया अपने आप नूं भी मौला आख ते ए अली नूं भी मौला आख। ਇਹਦਾ मतलब फिर किन्ने मौला हो गए? बोलो तो सही, किन्ने मौला हो गए? चलो मैं गिन देना, एक अल्लाह मौला, एक मोहम्मद मौला और एक अली मौला। सारे बोलो एक अली मौला। मेरे अजीजों ਇਹਦਾ मतलब है त्रै मौला, एक ओ मौला, एक मोहम्मद मौला और एक अली मौला। मेरे अजीजों पूरे अरब दे विच जिन्नी दुश्मनी सी या उस मौला दी सी। हाय हाय सदके जावां, आखिरी जुमले ने किबला ये त्रै मौला ने, ये जिन्नी अरब दे विच दुश्मनी सी ये दो मौला दी सी किबला। एक ओ मौला वे उन्नी देर तक बंदे मुहम्मद दे दुश्मन नहीं होए जिन्नी देर तक कानून नाज़िल नहीं होया। क्या बात है भाई, सदके जावां। मुहम्मद की अपनी दुश्मनी कौन नहीं, अल्लाह की तौहीद मनवांदिया लोग मुहम्मद दे वैर पै गए। उन्नी देर तक वरना तो सादक मानते सन, अमीन मानते सन, मेरे जो अपनी मानता भी रखते सन। जिन्नी देर तक आ कानून नाज़िल नहीं ना होया उन्नी देर तक सादक भी मानते सन, अमीन भी मानते सन। जो उस मौला का आ कानून नाज़िल होया लोग मुहम्मद दे वैर पै गए। इन्हां दुआ मौला की दुश्मनी सी, एक उस मौला की, एक ऐस मौला की, मुहम्मद मौला की। मेरे जो हजरत अली की किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं सी, किसी दे नाल कोई दुश्मनी नहीं। तुहानूं पता है एक जंग दे विच हजरत अली की तलवार टुट गई सी, जंगे उहद दे विच तलवार टुट गई सी। ये जिहड़े मुहम्मद मौला ने ना इन्हां ने अल्लाह मौला नूं आखिया, ऐ मौला एक बल जी तलवार ते भेज। हाय हाय सदके जावां, मौला ते गल आ गई। फरमांदे ने मौला एक मौला थल्ले ने मुहम्मद मौला, इन्हें उस मौला नूं आखे मौला एक बल जी तलवार ते भेज। उस मौला ने जिहड़ी तलवार भेजी है ना इहदे ते नबूवत दी भी मोहर सी। हाय हाय इहदे ते किबला रिसालत दी भी मोहर, इहदे उत्ते किबला तौहीद दी भी मोहर। ये लाइसेंस याफ्ता असला नाज़िल होया कि असला लाइसेंस याफ्ता नाज़िल होया उस मौला ने भेजे, मुहम्मद मौला ने मंगवाया। अगो अली दी नजर पई, फरमाया असला मेरे हवाले करो। हाय हाय सदके जा, आ जिहड़ा नाज़िल होया ना एक मौला भेजे, एक मौला मंगवाया, एक मौला चलाए। मेरे अजीजों जिहड़े वेले इहदे ते तौहीद दी भी मोहर, इहदे उत्ते किबला नबूवत दी भी मोहर। ये असला चलिया किदे हथों में, अली दे हथों। ऐसे हाथ नूं अल्लाह फरमांदा है यदुल्लाह है। हाय हाय ये अल्लाह का हाथ है। ओए अल्लाह दे बंदिया जिन्ने बंदे अली मारे ने मेरे तो में हाथ को आते नहीं, उन्हां च अल्लाह दा हाथ जरूर है। हाय हाय सदके जाओ, ये यदुल्लाह है ना, अल्लाह दा हाथ उन्हां बंदियां दे विच मौजूद है। ईमान की जान क्या है वो मोहब्बत अली की है। ईमान की जान क्या है वो मोहब्बत अली की है, और राहत जो कब्र की है वो उल्फत अली की है। खायल है सब सर पसंद वो सखावत अली की है, और कातल को भी अमान वो मरवत अली की है, और जाएगा दोज़ख जिस वजह से वो अदावत अली की है, और जन्नत को है इंतजार जिसका वो मोमन अली का है। सदके जाओ, बहुत शुक्रिया जी, मौला जिंदगी दराज करे जी। बड़े आसान अंदाज नाल समाज फरमाया कि इसका मतलब है फिर इन्हें यदुल्ला आखे ना नबी आखे कि ये अल्लाह का हाथ है। इसका मतलब है तलवार आम हाथ चो नहीं चली, अल्लाह के हथों चली जी। सदके जाओ उन्हें चली दा हथ है। मेरे अजीजों फिर जेड़े मेरे तलवार चली है, फिर किसी का मामा मारे, किसी का नाना मारे, किसी का सोहरा मारे, किसी का साला मारे, फिर किबला जी दे हथों असला चलिया जी, वैर तो दुनिया उहदे ही पैना सी ना। हाय हाय ये अली दी दुश्मनी क्यों पई है? जिहदे हथों किबला असला चलिया होवे
करना वैर तो ओदा पैना है ना हाय हाय सदके जावा कुछ दे हथों फिर चले किसी का मामा है नहीं किसी का सौरा है नहीं किसी का साला है नहीं किसी का फिर नाना है नहीं मेरे अजीजों जेड़े वेले तलवार चली है तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किए ने मेरे अजीजों कई बंदे ऐसी ऐसी चवल मारते हैं त्रै त्रै दिन नींद नहीं आती ऐसी ऐसी मौलवी चवल मारते हैं कि भला किसी टाइम कि त्रै त्रै दिन नींद नहीं आती वो आते हैं अगर अल्लाह जुल्फकार नाजल करता किसी होर भी नबी दे छड़ दे तो उस भी तो खैबर फतह कर ही लेना सी ना कई मच्छर के मुताबिक भी आते कि मच्छर को भी अल्लाह चाहता तो खैबर फतह हो जाना सी अगर ये तलवार आ जाती किसी होर के हाथ तो उस भी फतह कर लेनी सी मेरे मगर कोई जाकर साहब है पढ़न वाले चलो कोई गल नहीं साल बैठे इतने जी जाकर साहब बैठे हो तो मैं उन्होंने पूछा भाजी तुसी उन्होंने अगों पढ़ना हो मिसाल क्या देना उन्हें अगों किधरे पढ़ना हो ये तलवार अली तो अलावा किसी ने मिली कोई नहीं हाय हाय सदके जाओ लाइसेंस याफ्ता असला है ना अली तो अलावा किसी ने मिली तो कोई नहीं ना तो जो बंदा आंदा वे अगर ना भी इन्होंने तलवार देंगे किसी होर भी दे छड़ दे उस भी तो खतरा कर ही लेना सी ना मैदान ਇਹਦਾ मतलब किसी को होया तो नहीं हाय हाय नहीं मैं मिसाल देता मैं कि बला सारे बंदे मैं नार लाना चाहना इतने जाकर साहब को बैठे हो जिन्होंने मेरे तो बाद पढ़ना वो सारे बंदे ईमान नाल दसो शाह जी तुसीं पढ़ा के राजी हो पढ़ा के राजी शाह जी होरी बानी है मजलिस ने ये आंदे ने असीं पढ़ा के राजी हैं तो मैं अलहमदुलिल्लाह पढ़ के राजी हाँ सामने कुरान तुसीं सुन के राजी हो कि नहीं राजी अलहमदुलिल्लाह बड़ी बड़ी वो कहते हैं दो भी गवाहियां हो ना तो त्रै भी होन तो बड़ियां होंदियां तो बथेरियां गवाहियां मिल पईयां ਇਹਦਾ मतलब ये पढ़ा के राजी ने मैं पढ़ के राजी हाँ तो तुसी सुन के राजी हो इत्थे जाकर साहब बैठे हो मैं उन्होंने पूछा कि जाकर साहब तुसी राजी हो उन्होंने बेचारे अगे पढ़ना हो वो आखे मैं कोई नहीं जे राजी वो अपने टाइम की वजह तो मैं अगे जाके पढ़ना सी मिंबर में चिमड़ गए छड़ नहीं पे वो कि भला अपने टाइम में बार बार घड़ी ने देखे मेरी घड़ी अज घर रह गई मैं तां पिया पढ़ना वो बार बार घड़ी ने देखन मैं तुसी राजी हो वो आखन मैं कोई नहीं राजी मैं कोई नहीं राजी हुण तुसी सुन के राजी मैं पढ़ के राजी शाह जी हो रही कि भला पढ़ा के राजी असीं सारे राजी होइए मैं पढ़ के टुर जा वो मगरों मिंबर ते आन ते मुंह बना के आखन ये ना नहीं आंदा तो मजलिस ते हो जानी सी ना हाय हाय सदके जाओ ये नाम ही आंदा तो मजलिस हो जानी सी ਇਹਦਾ मतलब मैं आवां या ना आवां ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਟੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦਾ मतलब ਤਲਵਾਰ ਅਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਦਕਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹਦਾ मतलब कई आंदे ने मच्छर को भी गला चाहता तो खैबर फतह हो जाना सी तलवार किसी होर भी देंदे तो तां भी फतह हो जानी सी मेरे अजीज उस्ताद मोहतरम फरमाते ने कि मेरा एक दोस्त है उन्हें आख्या कि मच्छर को भी अल्लाह चाहता ना तो खैबर फतह करवाना चाहता तो करवा सकता सी उन्हें आख्या छड्ड पर हर वेले मसलियां दे विच पिया रहना ये छड्डिया कर किसी टाइम होर भी गल्लां करया कर मसीत भी उन्हें कोल सी ते पट्ठा भी उन्हें रखा तो मसीत ही अल्लाह तौबा करता सी वो मसले भी किबला साहब ना करता सी उन्हें आख्या हर वेले मेरे नाल मसले करता रहना छड्डिया कर किसी वेले दीन तो बाहर भी निकलिया कर और किसी टाइम आम भी गल्लां करया कर उन्हें आख्या पुत्र है गई उन्हें आख्या है की करता है पढ़ता है किनवी च चौथी क्लास में उन्हें आख्या तो पिस्तौल भी घुका रखे है उन्हें आख्या हाँ है पुराना बत्ती बोर पुराना बत्ती बोर उन्हें आख्या ते मुंडा तेरा चौथी पढ़ता है अरे आहो तो उन्हें आख्या लाइसेंस है ही ओदा क्या बात है आखिरी जुमला बताया लग लाइसेंस है ही ओदा कहने लगा आहो है पुराना बत्ती बोर का लाइसेंस है ओदा ते मुंडा भी चौथी क्लास पढ़ता है तो उन्हें आख्या जो लाइसेंस है तो फिर तेन डरन की कादी जरूरत है वो किसी वेले मुंडे नूं दिया करना हाय 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 क्या बात है जो समझ गए मजलिस से हो गई है कि मतलब वो किसी मेरे मुंडे नूं दे आहे क्यों आहे उंज ही लैके फिरे टुरे करे किसी टाइम उन्हें आख्या बह तू एडा सियाना मैं क्या मुंडा अपना नहीं हूँ अहे अपना ते पिस्तौल अपने लाइसेंस नहीं हूँ लाइसेंस भी है तो डरना क्या तुम्हें उन्हें आख्या तू बह एडा सियाना वो पागल का पुत्र बाहर किसी नूं फायर मार दे पैना तो मेरे तो ही है ना हाय हाय पैना तो मेरे नहीं है मैं क्या मौलवी पर शर्म कर और तू पागल नूं पिस्तौल नहीं देंदा अल्लाह किसी जाहिल नूं जुल्फकार अदा नहीं कर मौला जिंदगी दा
सदके जावां जी, बहुत शुक्रिया कि बड़े असर अंदाज ने तुसा समात फरमाया। मैं जनाब दे ज़ौके समात नूं सलाम पेश करना। मेरे अजीजों, उन्होंने आख्या पागल दा पुत्र बाहर किसी नूं फायर मार दे, पैना ते मेरे ते ही है ना। इहदा मतलब है तू पागल नूं पस्तौल नहीं देंदा, अल्लाह किसी जाहिल नूं जुल्फकार नहीं देंदा। इहदा मतलब है जे अगर किसी जाहिल नूं अल्लाह जुल्फकार दे देवे ते मेरे अजीजों सारे अगर वो कतल करी जे पैने ते अल्लाह दे ही देना। हाय हाय सदके जावां मेरे अजीजों, इहदा मतलब पैने ते अल्लाह ते। इसे वास्ते अल्लाह सोच समझ के जिन्हें नहीं देता है ना, अल्लाह सोच समझ के अता करता है। मेरे अजीजों, कुरान बचिया अल्लाह दा, तौहीद बची अल्लाह दी। तौहीद तो मैं शुरू गल की सी। मेरे अजीजों, नबुवत बची मुस्तफा दी ते वैर देंदी रहियां तियां हैदरे करार दी। अली दी अगर तलवार चली है तो किबला सौखी नहीं चली है। हर उस बंदे ने किबला अली दियां धीयां तो बदले ले ने, जिन्हां दे मैदान दे विच नाने नहीं मर गए सन, जिन्हां दे किबला मामे नहीं मर गए सन, जिन्हां दे पुत्र मर गए सन। इस वास्ते यजीद ने तख्त पे बैठ के आख्या सी, अगर आज मेरे बदर वाले होते, आज मेरे उहद वाले होते, वो आके देख दे मैंने किस तरह बदरो उहद के बदले लिए। मेरे अजीजों, इहदा मतलब है बदले दिते ने, बाजारां दे विच वैर दिते ने। अली दियां बेटियां ने बाजारां दे विच। मेरे अजीजों, किसी चौधरी दा एक तबलीगी जमात दे बंदे उस्ताद मोहतरम फरमांदे ने, मेरे ते कहन लगा आके सवाल कीता, उस आखे अहले सुन्नतां दे बड़े 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 इज्तिमा हुंदे ने, लोकी धीयां भैणां नाल नहीं लैके जांदे। तबलीगी इज्तिमा हुंदे ने, लोग धीयां भैणां नाल नहीं खड़दे। अहले हदीसां दे बड़े 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 इज्तिमा हुंदे ने, लोग धीयां भैणां नहीं नाल खड़दे। तुहानू की हो गया, चंगी भली कौम हो, धीयां नाल लैके भैणां नाल लैके कदी उस बाजार, कदी उस बाजार, कदी उस बाजार। उस्ताद मोहतरम फरमांदे ने, जिहड़ा मैं जवाब दिता सी जनाब तक पहुंचाना चाहना, उन्हां आख्या सी धीयां भैणां घर बिठा छड़दे ते निरे आप मजलसा ते जांदे जे मेरे मौला दा वैर पुत्रां ते मुक जांदा। क्या बात है भाई, वो लोग भतीजे मार लेंदे, पोतरे मार लेंदे, दोतरे मार लेंदे, पुत्र मार लेंदे। अजीब किस्म की मुनाफकत की है मुसलमाना। तो पुत्र मारे अली दे, तेरा गुस्सा ठंडा ना होया। तो पोतरे मारे अली दे, तेरा गुस्सा ठंडा ना होया। तो दोतरे मारे अली दे, तेरा गुस्सा ठंडा ना होया। जनाब फातिमा साहब कुबरा तो रवायत है, जब वेले नेज़ियां वाले साडियां खैमियां दे विच आए ने, उदों मैं फुफी ज़ैनब दे दामन लग के आख्या सी, फुफी अम्मा अजे साडे दादे अली दा वैर मुका नहीं। क्या अजे साडे दादे अली दा वैर मुका नहीं। बिस्मिल्लाह, बैठो बैठो, बिस्मिल्लाह, तशरीफ फरमाओ। अजे साडे जनाबे फातिमा को बड़ा फरमांदे, अजे साडे दादे अली दा वैर मुका नहीं। मेरे अजीजों, इहदा मतलब है बाजारां दे विच वैर दिते ने अली दियां बेटियां ने। किसे चौधरी दा बॉडीगार्ड आके आखे ना, लै भाई चौधरी लभ गई नहीं जिन्होंने तू पिया लभदा सी। मैं पंजाब के कल्चर के पिया पढ़ना वा और अलहमदुलिल्लाह पंजाबी बंदे मेरे सामने तशरीफ फरमान। अगर किसी चौधरी का बॉडीगार्ड आके आखे ना, लै भी चौधरी लभ गए नहीं जिन्होंने तू लभदा सी, वो आखे कौन? आखे तेरे पुत्रां दे कातलां दियां धीयां फलानी दुकान ते सौदा लैण वास्ते आंदियां ने। अगर तू आखे तो उन्हां चों एक अद्धी मार छड़ीए, एक अद्धी। मैं पंजाब के कल्चर के बंदे आंदे देखे ने। आराम नाल बोए, वैर साडा बंदियां दे नाल है, धीयां सारियां दियां सांझियां हुंदियां जे। मौला तुहाडे आंसू अपनी बारगाह कबूल फरमाए। धीयां सारियां दियां सांझियां हुंदियां ने। मेरे अजीजों, अली दियां बेटियां ने बाजारां दे विच वैर दित्ते। तुसां सुनिया नहीं कि जदों जनाबे सकीना दे कोल बाबे दा सार आया, सार आया ना किबला, हालत केड़ी सी? सज्जे दियां जुल्फां खब्बे सन, खब्बे दियां जुल्फां सज्जे सन, अबरू कट्टे, होंठ कट्टे, चेहरे ते तीरां तलवारां दे जख्म। मेरे सामने कुरान ही और जिन्हां बाजारां दे विच अली दे पुत्रां दे खून दे नाल चेहरे रंगीन गुजरे ने, अली दियां बेटियां दे चेहरे भी उन्हां बाजारां दे विचों रंगीन गुजरे ने। मेरे अजीजों, जेड़े वेले एज बाजार कूफा दे विच बीबियां पहुंचियां ने ना, ते पत्थरां दी बारिश लथी है, पत्थरां दी बारिश लथी है। मैं किबला एक रवायत पढ़ के इस रवायत नूं पढ़ना चाहना वा। ताइफ दियां वादियां दे विच नबी नूं पत्थर वजे ने कि नहीं? बोलिया जे सारा मजमा बोलिया। ताइफ दियां वादियां दे विच बच्चों दियां किताबां दे विच भी पढ़ाया जांदा। मेरे अजीजों, इहदा मतलब है कि ताइफ दियां वादियां दे विच पत्थर वजे ने, वजे ने। फितरत दा तकाजा किबला, जदों किसे वाल कोई शैद सुटे ना, पहाड़ मुसाहिब दा
अगर तुसी महसूस कीता है इन्हों ते मैं पढ़ के छड्डन लगा मिंबर फितरत दा तकाजा ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਟੀਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਟੀਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ आखिर तो नबी का सर भी जख्मी होया और सर का खून एड़ियां रस्ते गुजरे ਇਹਦਾ मतलब है फितरत दा तकाजा ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸੁੱਟੀਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਇਫ ਦੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਨਬੀ ਕਦੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਬੀ ਕਦੀ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਾਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੂਫੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਰਦਨ ਵੱਜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ किसे मारिया उते ही बज गए जो आलिया का चेहरा खून नाल रंगीन हो गया मदीने वाले पासे मुंह करके आवाज दे के बीबी फरमांदे सन या रसूल अल्लाह आग तियां दे चेहरे वेख दीन औखा पिया बच गई अल्लाह लानत